MCQs number 554. A patient presents to you with carbon monoxide poisoning. The liver enzymes are increased. Hepatocytes damage occurs due to which of the following process? तो हेपेटोसाइट डैमेज किस तरह होता है का COQ इनहिबिशन की वजह से, कॉम्प्लेक्स 2 इनहिबिशन ऑफ ETC, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिशन की वजह से, कॉम्प्लेक्स 3 इनहिबिशन ऑफ ETC। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिशन होती है जिसकी वजह से हेपेटोसाइट का डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग डिक्रीजेज द लेवल ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट कुड बी द कॉज? COQ inhibition decrease mitochondrial concentration, decrease hemoglobin concentration, decrease oxygen delivery to the mitochondria। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ATP के लेवल्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवरी टू माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ATP की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है। Clinically, a lymph node was palpable inferior to thoracopectoralis minor muscle inferior the pectoralis minor muscle के below inferiorly lymph node palpable है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? इंटीरियर, सेंट्रल, एपिकल, पोस्टीरियर। तो ये आ जाएगा पैग माइनर के नीचे एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। फिर है 556। A woman comes to the breast clinic with massive enlargement of the breast due to a mass. Pathology shows that the tumor is benign. What is the most likely tumor? तो बिनाइन ट्यूमर का बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा, फाइलोड्स ट्यूमर, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, लोब्यूलर कार्सिनोमा। तो इसका ऑप्शन होगा फाइलोड्स ट्यूमर। तो मैसिव इन्लार्जमेंट है और पैथोलॉजी में बस ये बताया कि बिनाइन है, तो फाइलोड्स ट्यूमर होगा बिनाइन। अ पेशेंट हैज़ कम टू यू four times in weeks with complaints of heart disease. You have run तो comes to you 4 times in 6 weeks with complaints of heart disease. तो you have run a whole battery of tests and reassure him yet again that he is okay. What is the diagnosis? Malingering hypochondriasis, somatization, conversion disorder। तो इसको क्या कहेंगे? बी, हाइपोकॉन्ड्रियसिस। तो हाइपोकॉन्ड्रियसिस की डिटेल बताई हुई है। हाइपोकॉन्ड्रियसिस फिजिकल कंप्लेंट्स विदाउट अ क्लियर कॉज, सिवियर एंग्जाइटी फोकस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ सीरियस डिजीज। सिवियर एंग्जाइटी होती है कि उसको कोई सीरियस डिजीज है। स्ट्रॉन्ग डिजीज कन्विक्शन, मेडिकल रिएश्योरेंस डज नॉट सीम टू हेल्प। स्टैटिस्टिक्स में क्या है? Good prevalence data are lacking. Onset at any age and runs a chronic course, affects both men and female equally. Sometimes misdiagnosis when health worker cannot find any explanation for the illness behavior and comes to the conclusion that it is all in the patient's head। तो इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियसिस। नेक्स्ट है A female has come to you repeatedly over the year with the complaint that she has palpitations and feels dizzy when this occurs. She has no anxiety or depression and all her tests have come back negative. What is your diagnosis? Malingering hypochondriasis, somatization, conversion disorder। तो इस पेशेंट को है सोमेटाइजेशन। उसको पैल्पिटेशंस होती हैं एंड फील्स डिजी व्हेन दिस अकर्स। ये एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह उसको नहीं है। तो अगर उसको पैल्पिटेशंस वगैरह सिम्टम्स आ रही हैं तो सिम्टोमेटिक वाले को कहते हैं बिहेवियरल साइंसेस, साइकेट्री, सोमेटाइजेशन।
Then a man has come to you after bankruptcy with inability to see anything at all. अच्छा, बैंक करप्ट होने के बाद उसको विद इनएबिलिटी टू सी एनीथिंग एट ऑल ही सेड ही woke up and was blind. His eyes don't follow light, but his pupils are reactive and round. All tests seem to be normal and no organic cause was found for blindness. What is the diagnostic? तो ये क्या है? मेलिंगरिंग हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमैटिफॉर्म डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो ये होगा कन्वर्जन डिसऑर्डर. A tube is connected to a mask with a cuff that can be inflated by a balloon. What is this device? Laryngeal mask, airway, endotracheal tube, ETT, venturi mask, ETT tube. तो ये होता है laryngeal mask, airway, जिसमें tube is connected to a mask with a cuff that can be inflated by a balloon. तो वो होती है laryngeal mask, airway. Which of the following hernias can one wait and watch and treat with expectant management? Femoral hernia, incarcerated, strangulated, reducible. अगर स्ट्रैंगुलेटेड है फिर तो इमरजेंसी सिचुएशन होती है. इनकारसिरेटेड भी स्ट्रैंगुलेशन से पहले इनकारसिरेटेड होता है. और फेमरल हर्निया तो जो रिड्यूसिबल होता है उसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं. अरेंज अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. लीस्ट में आ जाता है कैनेमाइक्रॉन्स, उसके बाद आती हैं VLDL, फिर उसके बाद IDL और फिर उसके बाद HDL. Young boy with bloody stools, joint pains, and on colonoscopy, rectum till the transverse colon seems to be affected. So which drug can be used in treatment? ब्लडी स्टूल, जॉइंट पेन्स और कोलोनोस्कोपी पे रेक्टम टिल द ट्रांसवर्स कॉलन अफेक्टेड है. तो इसमें हम क्या देंगे? एस्प्रिन, माइकोफिनोलेट, सल्फासेलेजीन. और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेडिसोलोन. तो ये इरिटेबल बाउल डिजीज़ का था सिनेरियो, जिसमें क्या देते हैं? सल्फासेलेजीन विल बी गिवन. नेक्स्ट है abnormal bleeding time in a young boy. You can suspect which of the following diseases? Hemophilia A, B, bone mineral, vitamin K deficiency. अगर एक यंग एज में abnormal bleeding हो रही है तो वो क्या होगा? वोन विलिब्रेंट डिजीज़ होगी. Young boy present to you with recurrent eczema, recurrent sinusitis and diarrhea and history of bleeding after circumcision. What is your diagnosis? Bernard Solier, Glanzmann thrombocythemia, Wiskott-Eldrick syndrome, von Willebrand disease. तो ये होगा विस्कॉट-एल्ड्रिक सिंड्रोम, जिसमें एक्जिमा सिनोसाइटिस के सिम्टम्स के साथ डायरिया के सिम्टम्स भी होंगे और हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसिजन भी है. तो ये डायरिया, सिनोसाइटिस और सर्कमसिजन में आफ्टर सर्कमसिजन ब्लीडिंग की हिस्ट्री. तो ये जाएंगी विस्कॉट-एल्ड्रिक सिंड्रोम की तरफ. How is lactose excreted from the body? Kidney से, liver से, fecal without absorption in gut, urinary after gut absorption. तो lactulose excreted होता है from the body, fecal without absorption in gut. अच्छा, without absorption ये fecal route से excrete हो जाएगा lactulose. What is the role of lactulose in hepatic encephalopathy? Hepatic encephalopathy में lactulose का क्या रोल होता है? ये ट्रैप्स करता है अमोनिया को इन कॉलन एंड बाइंड्स टू इट, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इट इनटू अमोनिया माइंस. ऑस्मोटिक डायूरेसिस है, डायूरेटिक अमोनिया है. तो ये ऑप्शन है, ट्रैप कर लेता है कॉलन में, उसके साथ बाइंड करता है. A person comes to you for an annual echocardiogram. You find that he has mixed aortic disease with both regurgitation and stenosis present. What pulse would you find in this person? तो इसमें क्या होगा? वाटर हैमर पल्स, पल्सिस बिस्फिरेंस, इरेगुलर पल्सिस स्टार्डस. तो ये हो जाएगा. तो उसको क्या है? पल्सिस बिस्फिरेंस है. नेक्स्ट है
child in the newborn nursery is A positive, mother is O positive, the child has anemia and high reticulocyte count. What test will confirm your diagnosis? इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, फेरेटिन लेवल दोनों पॉजिटिव हैं तो बेबी में एनीमिया, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट है तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करेंगे। देन है in a newborn child who you are suspecting rhesus incompatibility, which of the following tests you would use to screen the mother? Direct, congenital, indirect, congenital. तो who you are suspecting rhesus incompatibility, तो उसके लिए हम करेंगे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म टेस्ट मदर की स्क्रीनिंग के लिए। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म अगर बेबी और मदर दोनों पॉजिटिव थे, वो पॉजिटिव ये पॉजिटिव हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवाए थे, यहाँ के लिए हम करवाएंगे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। देन ये हो गया 570 तक।